simultaneously 2 years back, I joined the academy through one of the sessions, and I liked it. So I joined the group, and the Telegram group for me was very helpful. There was a lot of motivation. Many people were there, many doctors who have made their hospitals and are doing good. So that project was back in my mind, but I was not being able to bring it to the ground. Right. So, but with the push from the academy and all my queries which I had, because I was so novice in this field, Right. because we as a doctor just only see patient. We are. Hello and welcome to another edition of Hall of Fame interviews. Today we have with us Dr. Vishal Srivastav. He's a well-known pediatrician in Bhopal, and he has done his DNB from Pune and then senior residency from AIIMS Bhopal, and he is an entrepreneur in himself. And kudos to your effort and congratulations for the HF. Thank you, sir. Thank you so much. It is so nice being here, and I've been following the academy since last 2 years when I joined 2 years back. And with the help of the academy, with the help of the Telegram group, I've been able to accomplish this feat. So thank you so much. Good. To the academy and the mentors. Oh, thank you, thank you. It's all your effort. We only do dhakka to you, right? So that dhakka is so much needed because about that dhakka only. Yeah, it is so much about dhakka, sir. Yeah. And that is what was needed, and which I got from that platform. Because I feel that most of us are really educated and aware enough of the things and surroundings, but we need that push from somebody. Sometimes Sure, that push that comes is from definitely. parents, sometimes that push comes from the wife or husband, and sometimes that push comes from the academy. In academy, definitely going to be there. That is so true, sir. So true. My wife, being a gynecologist, she was hesitant. She didn't want much in going into hospital because belief is that you get so much busy and that you don't get time. And so I showed her the academy's first lecture when I joined, how to start and what to do. And you will get your time also. And it is not like that. It is up to you how you make things up. That I showed. If you plan properly, then you get your time. Yeah. That is what I showed her. That was always like in her mind, it will now life will be like gone once you start a hospital. Yeah. So we are just into 1 month, but okay, now that thing, half of the work is done. Now planning is the only thing which is remaining. How to continue further. So tell me about your background. How did you start and where all did the training from? Just for the audience. I started my journey as a doctor. MBBS initially I did from Government Medical College, Riva. Then I did my DCH from there itself. In 2012, I completed my DCH. After that, I did DNB, secondary DNB in pediatrics from KEM Hospital, Pune, in 2015 to 17. And then from 17 to 20, I was senior resident in AIIMS Bhopal. Since Bhopal is my city, so I preferred being in AIIMS Bhopal. And after that, completing my senior residency and simultaneously starting my clinic towards the end of the senior residency, I started my clinic and with the same name, Marvel Clinic. And then I joined after completing residency at that time it was COVID time started. So I joined a private hospital, medical college, as an assistant professor, which I am still continue. Now I am waiting for the time when I can leave it, but it's manageable as of now, very easily. So I'm continuing it. And simultaneously 2 years back, I joined the academy through one of the sessions, and I liked it. So I joined the group, and the Telegram group for me was very helpful. There was a lot of motivation. Many people were there, many doctors who have made their hospitals and are doing good. So that project was back in my mind, but I was not being able to bring it to the ground. Right. So, but with the push from the academy and all my queries which I had, because I was so novice in this field, because we as a doctor just only see patient. We like in medical college, everything
everything is set up already, that nurses know, autoclaving is done. Now we have to, everything was to do from the ground level. Yes. So I took the knowledge bits and pieces from the academy. My queries were solved. Sir, you were answering, and Amit sir and all other members were also able to answer, who are already running a hospital. So that was very helpful for me. And all the doubts, whatever came in my mind, I used to put in the group, and then next day I would get answer, and sometimes immediately I would get answer. So that helped me very much. Actually, it is such a nice feeling in being in that community that sometimes we don't answer and people answer on behalf of us. Yeah, definitely, sir. That track, it usually they'll try to help you out. That was the main important thing, sir. So it is for the audience to listen that we have a very active and vibrant Telegram group in which we share the experiences, and some people ask questions, keep asking questions on the daily basis. Yeah, कभी भी उनको कुछ doubt होता है तो they ask the questions, and then they get immediate answers from the people who are already experienced in that branch, or we as a moderator for the group, we answer that. How did your journey start for this hospital, and what are the main doubts in your mind which were shattered in the academy? सर इनिशियली में तो बहुत सारे डाउट्स थे कि इवन आप लैंड कहाँ पे लें, और एरिया कौन सा होना चाहिए, और कितना एरिया होना चाहिए, और जो बेड के हिसाब से कितना एरिया होना चाहिए. मतलब बीइंग सो न्यू इन दिस फील्ड, so I gained so much from the academy. Initial how to build a hospital, that lecture is there, that for a 30 bedded hospital आपको क्या क्या चाहिए. Right. So that first slide helped me clear many things. Yeah. कि क्या क्या एरिया चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए. So that slide was very important to me. And then other hurdles were there कि मतलब जब आप बनाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस जो हॉस्पिटल में काम किए हुए हैं, प्लम्बर्स, एंड देन ऑटोक्लेव सेट करना, ईटीपी सेट करना, देन फायर सेफ्टी अब तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके बिना अलाउ नहीं करते इवन एमपी में, बिकॉज कुछ केसेस हो गए थे इन हॉस्पिटल्स ऑफ फायर, तो उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो गए. फायर सेट करना, लिफ्ट, स्ट्रेचर वाली लिफ्ट डिजाइन करना, तो बहुत सारे हैंड्स थे जिसको बहुत धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया. मतलब मुझे आई टुक इवन 1 year, more than 1.5 year I took for completing this project from joining the academy. After that 3-4 months later I started the project, and then till now I have just completed. अभी मैंने कंप्लीट करके फ्री हुआ हूँ प्रोजेक्ट से. तो इसमें फिर ऐसा होता था कई बार कि मेन थिंग इज कि वन प्रोसेस इज कि आप किसी, जैसे अकेडमी में दोनों चीजें बताई गई थी, आप एक अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करिए दैट ही कैन डू इट फॉर यू. बट भोपाल जैसी जगह में मुझे बहुत ऐसा कोई हाई-फाई आर्किटेक्ट मिला नहीं जो हॉस्पिटल की प्लानिंग अच्छे से करे. मतलब दे वर आल्सो नोविस. मतलब मैंने ट्राई किया 2-3 जगह, बट मेरे को ऐसा बहुत कोई परफेक्ट आर्किटेक्ट नहीं मिला जो एरियाज डिजाइन कर दे. तो देन मुझे फिर आई डिसाइडेड कि मुझे ही करना है. बट माय फादर was of great help. He is basically a builder, so he made few areas उन्होंने बनाए, like private room areas and OPD areas. बाकी ICUs, OT floors वो मैंने डिजाइन करी. So मिलके me and father decided, and मतलब we were the own architect of our hospital. Good. And I think we have made quite justice to that. We have given justice. हमने काफी एरियाज ठीक बना लिया है NABH के भी हिसाब से, उस हिसाब से. Fantastic to hear. One more thing, you have incorporated all the fire safety rules and all the statutory requirements, right? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. वो तो मेरा प्लान शुरू से ही था कि इनके बिना, मतलब बीच में कोई आके बोले कि ऐसा नहीं हुआ, और कोई बोले आप ऐसा कि ये आपका गलत है, मतलब मैंने वो चीज पहले ही सोच के वो हटा दी. मैंने कहा कि जुगाड़ नहीं करेंगे, सब सही करेंगे. And it's not very difficult, like it can be incorporated, just it is a few right here and there, and you get the proper hospital. Yes sir, वो मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आता है. मैं बिल्कुल न्यू था, तो मैंने मतलब 10 फायर वालों से बात की यहाँ पे, फिर एक मिला, एक जिसने बड़े प्रोजेक्ट किए हैं या काम किया हुआ है अच्छा, तो उन लोगों को फिर आइडिया रहता है कि देन यू गिव होल सोल टू देम. दे जस्ट आस्क यू कि कहाँ हम फायर वाला सिस्टम लगाएं, थोड़ी सी प्लानिंग आपको देनी पड़ेगी, बट रेस्ट दे डू. तो बस लोग अच्छे मिल जाए सर, वो ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही, मैं मानता हूँ कि लोग अच्छे मिले. उसमें भी ऐसा एक हुआ था कि मैंने ETP का किसी और से कर लिया था, फिर मुझे कैंसिल करके जो मेन जिसने सारे ETPs किए भोपाल में हॉस्पिटल से, वो बाद में मिला मुझे. इनिशियली मुझे कोई एक नोविस ही मिल गया था ETP लगाने के, तो ही वाज चार्जिंग टू मच. मतलब
फॉर मी मैंने 10 KLD का ETP प्लांट डिजाइन किया था कि और आगे बढ़ाएंगे तो फिर से ETP चेंज नहीं करेंगे। तो ही वॉज टेकिंग वेरी हेफ्टी फीस। फिर ये जो आए एंट्री हुए तब मुझे पता चला। तो धीरे धीरे मतलब सर ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ मिल जाएगा, आपको रिवर्क करना पड़ता है, बहुत बार बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। You established 30-bedded hospital, right? 30 अभी चालू सर वैसे किया है, बट वो एक्सपेंडेबल है। 40-45 बेड आराम से चलेगा। जैसे हम मतलब वी लोग हैव 5 फ्लोर सर, हाँ, 5-6 फ्लोर फ्रॉम लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे मैं रहता हूँ। okay, मैंने रेसिडेंस अभी यहीं कर लिया है। ठीक है. So, what are the main challenges when you started? चैलेंज सर एक तो मॉनेटरी वाइज भी था। Mhm. तो मनी वाइज बेसिकली इनिशियली प्लान वाज कि रेंट पे ले लें हॉस्पिटल, रेंट पे चलाएं, बट देन डाउन द लाइन मतलब ऐसा सोचा कि लोन लेके देन वी कैन स्टार्ट टेक द बिल्डिंग। हमने एक्चुअली सर बिल्डिंग परचेज कर ली थी। इट वाज इन द मेन रोड, एयरपोर्ट रोड। तो बिल्डिंग परचेज करके इट वाज अ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फ्रॉम इनसाइड। देयर वर बिग हॉल्स एंड सो वी अच्छा ब्रोक था. ऑल द पार्टीशन। हाँ 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 हाँ। Right, that is also a good idea. तो इट वाज गुड आइडिया सर। हाँ मतलब इट वाज मतलब पहले देख के आया तो अच्छा लगा। फिर हॉल्स थे, बस उसमें दिक्कत ये आई सर, पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ा। दैट वाज अ चैलेंज, क्यों इनसाइड सारे आपको इंटरनल पार्टीशन तोड़ने पड़े। तो Right. उसमें काफी टाइम लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 5 months तो उसी में लग गए तोड़ के एरियाज रीडिजाइन करने में। इनिशियल लैंड से लेते तो थोड़ा सा इजी होता है, बिकॉज देन प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। बट देन ऑल्सो इट वॉज ओके कि अंदर से तोड़ा और फिर सारे एरियाज डिजाइन किए। दैट वॉज अ बिग चैलेंज टू ब्रेक द थिंग्स एंड अगेन स्टार्ट द You वर्कअप। had the फिर resources, or you took the loan, or you take help from your building father? सर दोनों चीज। तो फादर मतलब लोन तो लिया ही है। मी एंड माय ब्रदर, हम वी बोथ हैव टेकन गुड लोन। उस वो मेडिकल कॉलेज की सैलरी अभी उसी में ही जा रही है। Your brother is also तो doctor? नो ही इज नॉट अ डॉक्टर सर, ही इज अ इंजीनियर। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ही ही इज पार्टिसिपेटिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बेसिकली Okay. ही इज हैंडलिंग मोर। फार्मेसी हो गई, पैथोलॉजी अभी हमने आउटसोर्स कर दी है इनिशियली सर। तो फार्मेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, HR, ही इज हैंडलिंग दैट पार्ट एंड आई एम मोर इनटू दैट पेशेंट एंड पेशेंट पार्ट। So that division we decided initially only. Okay. So that was the, so we both took loans. We both are directors of the hospital, and so help from father obviously was there. Sir, अब वो फिर इतना इस लेवल पे फिर बहुत ही ज्यादा लोन हो जाता, तो मतलब half part he helped and rest we took loan. Right. Right. And your wife is also And doctor? yes, sir, my wife is gynecologist. She is also into a private medical college now, but she is going to leave because someone has to be there. किसी को तो रहना ही पड़ेगा। मतलब basically मैं भी रहता हूँ, but she will be permanently here on the floor. And so, what all departments will have? सर अभी तो मेन डिपार्टमेंट हमारा पीडियाट्रिक्स, न्यूनेटोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी है। बट फिर हमने पूरा, बिकॉज मेकिंग इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया ना, तो सारे डिपार्टमेंट ही रख लिए। मेडिसिन, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स एंड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, दीज ऑल सारे डिपार्टमेंट्स अभी चालू कर दिए, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डॉक्टर्स तो आप भोपाल से मिल जाएंगे ना आपको? हाँ हाँ, मेडिकल कॉलेज सर पास में ही है। मेरा मेडिकल कॉलेज इज लाइक 5 minutes फ्रॉम हियर। ओके. तो इतनी पास से, और वहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, तो वो 2 माय फ्रेंड्स ओनली। तो आपके उस वहां फ्रेंड्स से पूछते वो होंगे आपसे कि लोग आपको ये सब कहाँ से आया, इतना सारा बनाना कैसे सीखे ये सब? सर हाँ, सबको मतलब मैंने बताया हुआ है कि यहाँ से हेल्प मिला है एकेडमी से, और अच्छा. उसी के कारण मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिला। पहले तो हर्डल था वो, इट वाज लाइक अ हर्डल बिफोर ज्वाइनिंग द एकेडमी। फिर बाद में वो हर्डल खत्म हो गया था। तो मैंने बताया हुआ है सबको कि ऐसा ऐसा था। ओके. और अब जब आपने जब पूरा सिस्टम बना लिया, सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, तो क्या HR रिक्रूटमेंट वगैरह चैलेंज? हाँ, रिक्रूटमेंट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, बट सिंस भैया को थोड़ा आइडिया तो नहीं, ही इज वेरी एक्टिव इनटू दैट। सो पहले ही हमने जैसे इंडीड एंड उस पे जॉब्स पोस्ट कर दिए थे सर। तो लॉट ऑफ क्वेरीज स्टार्टेड कमिंग, मतलब बिफोर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन एंड बिफोर गोइंग इनटू इट, वी पोस्टेड ऑल नर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, what all requirements we had, Yeah. pharmacists, nursing, OT technicians. So from there we got a lot of queries, and उनमें से फिर हमने interviews लेके select कर लिए थे लोग। So you have taken how many staff you have? सर अभी मेरे पास जैसे सिंस स्टार्टिंग है, तो अभी मैंने ऑन कॉल भी रखे हुए हैं। जैसे OT टेक्नीशियन, वो 1 घंटे आता है दिन में, पूरा OT का
करके चला जाता है, बाकी ही इज ऑन कॉल। ऐसे फुल रेगुलर बेसिस पे बहुत नहीं रखा है। जो जो एरियाज थे जो एकदम से यूज नहीं होंगे तो वो मैंने ऑन कॉल रखा हुआ है। फार्मासिस्ट सर हमारे पास 3 फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी 24 आवर्स ओपन करी हुई है। बाकी नर्सिंग स्टाफ 6 का रखा हुआ है अभी मैंने। जैसे जैसे एरियाज, बाकी मेरे पास बैकलिंग में बहुत सारे हैं जो ऑन कॉल आ जाएंगे, तो 6 का अभी रेगुलर स्टाफ है नर्सिंग सर जो एरियाज में रह रहा है। बाकी ऑन कॉल पे सब नर्सिंग स्टाफ रखे हुए हैं। और एक 2 गार्ड रखे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सर 15 का स्टाफ है अभी मेरे पास। 15-20 स्टार से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? या 15 से 20 से आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा ये हो गया कि फ्लोर्स ज्यादा है ना सर, तो मतलब फिर बाद के लिए यू विल नीड मोर स्टाफ। अभी तो जो एरियाज वर्किंग होता है, जैसे अभी मैं एडमिशन भी कर चुका हूँ, 5 बच्चे एडमिट हो चुके हैं, एक बच्चे का ऑपरेशन भी हो चुका है, बायलेटरल कंजेनाइटल हाइड्रोसील था 4 इयर्स का बच्चा। तो ओटीज आल्सो हैव डन इन जस्ट लास्ट 1 मंथ, 5 एडमिशंस एंड 1 ओटी वी हैव डन। कितने ओटी बनाया आपने? मैंने सर 2 ओटी बनाए हैं, एक फुली मॉड्यूलर ओटी। ओटी में काफी हेल्प मिला था आप लोगों से, और वो मैम है गायनेक मैम जो काफी एक्टिव रहती हैं, सीनियर मैम है ना सर। हाँ, शुभांगी मैम, शुभांगी मैम। Yes. शुभांगी मैम से पर्सनली मैंने फिर चैट किया उनसे टेलीग्राम पे, तो वो उनने मुझे ओटीज में बताया ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने इवन ड्राइंग्स बना के भेजी एरियाज की, तो उधर उनसे काफी मैंने हेल्प ले लिया था। और एक फुली मॉड्यूलर ओटी है सर, वो अपना अराउंड 370 स्क्वायर फीट का है, एक ओटी बिग ओटी। और दूसरा मैंने एलएससीएस के लिए रखा है, वो अराउंड 200 स्क्वायर फीट का है। तो 2 ओटीज बनाए हैं सर, और उसी एरिया में ओटी मैंने टॉप फ्लोर पे ले गया हूँ, 3rd फ्लोर पे। और उसी पे फिर मैंने आईसीयू भी है अपना, उसी पे 7 बेडेड आईसीयू फुली इक्विप्ड, और लेबर रूम, ये मैंने एक फ्लोर पे कर दिए हैं सर, ओटीज, लेबर रूम्स एंड आईसीयू। आपने कम्युनिटी का पूरा फायदा उठाया, कम्युनिटी का आपको एडवांटेज मिला। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सर अब मतलब इतना उस चीजों में नहीं आ पाया आप लोगों के जो वो होते हैं, क्योंकि इसमें इतना टाइम निकल जाता था ना सर, के टाइम अब मिलेगा तो। और वीडियो मैंने वो जो स्टोर्ड वीडियो रहते हैं ना सर, वो ज्यादा देखे, जो आपने ऑलरेडी उस पर तो कम्युनिटी आपको पोस्ट फ्री कर टाइम रखे। जब मिला हाँ था? हाँ, फ्री टाइम जब मिला सर। बाकी जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें टाइम ही नहीं मिलता सर, मतलब एक साल में वो तो तो समझ इतना। सकता हूँ, इसीलिए हम लोग सब रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं ना। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही सर, वो उन्हीं से हुआ काम। और लाइव ग्रुप टेलीग्राम और वो रिकॉर्डिंग, तो अभी भी जैसे काफी चीजें आगे के लिए भी रिकॉर्डेड है, कि कैसे आप सॉफ्टवेयर HMIS ये सब बचा हुआ है, मतलब अभी तो हम बना के सब चालू किया है। या मतलब अभी तो बहुत चीजें अभी और हैं उसमें, तो अभी वो मेरा धीरे धीरे उनको सॉर्ट आउट करता जा रहा हूँ। आपका पूरा ओटी वगैरह सब कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा हो गया ना आपका? जी सर, सब बिल्कुल इनॉग्रेशन अब कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक ओटी हो भी गया है, जो छोटे वाले सिजेरियन ओटी में एक अपन ने ओटी कर लिया है। कब किया? इनॉग्रेशन किया था सर मैंने 30th को, लास्ट ये अपनी अक्टूबर, 30th अक्टूबर। I suggest you one मतलब thing अभी कितने दिन हो। that हाँ you सर। can extend that inauguration for the whole month. अच्छा, जी जी। नेटवर्किंग कीजिए इसके मदद से, एंड ट्राई टू ब्रिंग ऑल द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लाइक एक दिन रखिए डॉक्टरों के लिए, एक दिन रखिए कॉमन स्टाफ के लिए, एक दिन टेक्नीशियंस के लिए, एक दिन मीडिया वालों के लिए। ऐसे करके यू कैन एक्सटेंड इट फॉर अ मंथ, ओके एंड यू कैन मेक इट अ सेलिब्रेशन फॉर एवरी ईयर। तो एक मार्केटिंग के लिए आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी सर, वो ऐसे ही वन सजेशन डे सर है। आप लोगों से मिलते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। इससे हमने ज्यादा 2 लोगों दिन का को रखा था सर, अभी तो आप एक महीना एक दिन चलाइए ना, नॉर्मल एक दिन मैराथन पे ज्यादा कीजिए, एक हो। दिन वॉकेथॉन कीजिए। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल मीडिया सर, वालों को बिल्कुल। बुलाइए, उनको आइसक्रीम तो खिलाना है ना। हाँ हाँ, बस सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है सर, बिल्कुल करेंगे ये प्रोसेस। और बाकी आपने एक मार्केटिंग में क्या कोई अभी कुछ शुरू किया है, कहीं डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी फिजिकल मार्केटिंग? मार्केटिंग, जी मार्केटिंग में सर, डिजिटल मार्केटिंग में वैसे पहले भी आप लोगों के सेशन हुए थे, तो उनमें भी मैंने सुने थे काफी सेशंस। तो एक क्लिनिक के टाइम पे भी मेरा अपना पेज था, इंस्टाग्राम पेज था। फिर यूट्यूब में भी मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था, आपके जो वो भी थे उसमें, कि कैसे क्या करना है, वो मैंने अटेंड किया था वो वाला। भले ही लेट लेट आंसर डाल पाता था, पर मैंने वो पूरे सेशन करे थे कि कैसे वेबसाइट बना दी यूट्यूब में आपने? आप करो। वेबसाइट? वेबसाइट बना ली सर, वेबसाइट तो मतलब हॉस्पिटल चालू होने से पहले 3-4 महीने पहले ही बना ली थी। वो ओके। मतलब वो पार्ट, हाँ वो पार्ट भैया ने देख लिया था सर, ही वाज सो ही ऑलरेडी हैंडल्ड दैट वेबसाइट। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज अभी बनाया है सर, वेबसाइट पहले ही बना ली थी, तो उसमें उसमें आप अपन ने एक, डिटेल्स। एक कोई लड़का या लड़की रख के पुट इट, पॉपुलेट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ सर, अब वो उस स्टेज, हाँ वो चालू, अभी वो एक हायरिंग देखनी है सर, कौन ऐसा तो डिजिटल मार्केटिंग कोई बंदा अच्छा मिल जाए जो ये सब करता रहे, उसी के सर्च में अभी मैं हूँ। बाकी सर एरियाज वाइज बताऊं तो, हमने जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है उसमें हमने ऑफिसेज रखे हैं, एक्सरेज रखे हैं, और
पैथोलॉजी रखी है, और कैंटीन आगे जाके अगर लगता है तो छत पे, अभी कैंटीन का बहुत डिसाइड नहीं किया है, तो नीचे भी काफी स्पेस है। और फिर हमने ग्राउंड फ्लोर पे सर ओपीडीज रखी हैं, और इमरजेंसी, फार्मेसी एंड सोनोग्राफी रूम। ये ग्राउंड फ्लोर है जिसमें ओपीडीज के साथ ही हमने सोनोग्राफी रूम रखा है। फिर सर हमने फर्स्ट फ्लोर पे रखा है एनआईसीयू, 10 बेडेड एनआईसीयू है, और वार्ड्स, मेल और फीमेल वार्ड सेपरेट कर दिए, क्योंकि वो गायनिक वाला इशू था तो हमने फीमेल अलग ही कर दिया है। तो वार्ड्स और एनआईसीयू फर्स्ट फ्लोर पे रखे हैं। फिर सेकंड फ्लोर पे सर पूरा एक फ्लोर प्राइवेट रूम्स को दे दिया है, जिसपे 8 प्राइवेट रूम्स हैं, 8 प्राइवेट। और फिर थर्ड फ्लोर में जो मैंने आपको बताया ओटी, आईसीयू और लेबर रूम है सर। फोर्थ फ्लोर तो हम रेसिडेंस, वहाँ पे रेसिडेंस के लिए। मेनी पीपल आर एक्चुअली, कभी कभी वो खानागानी करते हैं और बोलते हैं कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान या वाटर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाना चाहिए, या फिर बनाया नहीं बनाया, कंफ्यूजन होता है। तो यू कैन गाइड देम कि आपको कैसे हाँ कैसे आपने वो चैलेंजेस को मिटिगेट किया। जी सर। हाँ सर, एमपी में मतलब इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ही नेसेसरी है। सीवेज तो अलग से आप करते हो, मतलब सीवेज का तो ऑलरेडी सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं है कि एसटीपी चाहिए, ईटीपी के लिए मैंडेट है। ईटीपी के लिए जगह कितनी चाहिए होती है? आपने कितना जगह स्पेस? सर मैंने तो थोड़ा सा उस एक्सपेंडेबिलिटी के हिसाब से बड़ा ईटीपी प्लांट लगाया है। मतलब एक्चुअली यहाँ पे मतलब अगर आप 50 बेड के लिए 10 केएलडी चाहिए होता है ईटीपी 50 बेड के लिए, तो मैंने उसी के हिसाब से 10 केएलडी वाला बनाया हुआ है सर। उसमें जगह अपन देखें तो अराउंड इट्स लेंथ वाइज स्प्रेड ज्यादा होता है वो, मतलब यू नीड width wise you need 8 foot space, 7 to 8 foot, and length wise you need 12 feet space। 12 से 14 फीट तक यूज हो जाता है। तो लेंथ में स्प्रेड बहुत हो जाता है, क्योंकि उसके कनेक्शन जाते हैं टैंक से, फिर पाइपिंग, फिर वो चैम्बर्स आते हैं जिनमें वो फिल्ट्रेशन होता है। 12-15 फीट चाहिए रहता है लेंथ वाइज, और विड्थ वाइज इवन 7 फीट इज ओके। तो वो मैंने पूरा सर बेसमेंट में रखा है मैंने। फायर जो मेरा एग्जिट जा रहा है, फायर एग्जिट पूरे बिल्डिंग का, उसी के नीचे रख दिया है बेसमेंट में। तो वो बेसमेंट में सर मैंने ऑक्सीजन वाला पूरा प्लांट और ईटीपी पूरा बेसमेंट में। इनिशियली में कंफ्यूजन था कि छत जगह निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि छत पे रख दें, ईटीपी वाले बोल रहे थे हम तो छत पे ही रखते हैं। बट फिर उसमें प्रॉब्लम ये आती है सर कि फिर वो जो ईटीपी का पानी आपका नीचे आ रहा है, उसको आप मोटर से ऊपर भेजो, तो वो डबल प्रॉब्लम आती है। पहले वो ऊपर भेजो, या डायरेक्ट ऊपर के लिए मोटर लगाओ पहले, तो जो भी ईटीपी का वाटर आ रहा है ऊपर जाएगा, फिर वहां से फिल्टर होगा। तो फिर वो एक बड़ा काम था, तो अपन ने फिर नीचे ही कहीं से जगह करके सर उसको अच्छे से सेट कर दिया। ऑलरेडी बिल्डिंग आपकी बनी हुई थी, तो एक चैलेंज था उसको बनाना, मतलब आसपास जगह थी इतनी कि आप कर पाए? हाँ चल, चैलेंज बहुत चैलेंज था। मैं मतलब सर चैलेंज था उसको बनाना। तो हाँ बहुत बड़ा चैलेंज था सर, क्योंकि वो चीजों को फिर से तोड़ के बनाना इज वेरी डिफिकल्ट एरियाज डिसाइड करना। इवन आई हैव यूज्ड टू स्पेंड 3 आवर्स। उसी समय मैं कम्युनिटी में मैसेज डाल देता था जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, कि क्या प्रॉब्लम आई मुझे ये मतलब ईटीपी डालने में, या ईटीपी कितने केएलडी का होना चाहिए, और फिर किस एरिया में होना चाहिए। मैं उसी समय डाल देता था जैसे ही थॉट आती थी। फिर आधे एक घंटे बाद आंसर्स आ जाते थे, तो चीजें क्लियर हो जाती थी। तो बेसमेंट में ही मैंने पहले भी यही, और फिर प्रॉब्लम्स ये भी आती थी कि एसीज, फैंस लगाना है कि एसीज लगाना है। एक बार मैंने डाला था फैंस आईसीयू में होने चाहिए, तो आपने बोला था आइडियली नॉट रिकमेंडेड, फैंस नहीं होने चाहिए। तो जो भी क्वेरीज आती थी वो मैं डाल देता था ग्रुप में, क्योंकि मेरे को मतलब मैंने कहीं ऐसा कुछ बुक नहीं पढ़ी। इट वाज ऑल फ्रॉम द ग्रुप एंड ऑल फ्रॉम सम सोर्सेज। कोई हॉस्पिटल जाके विजिट कर लिया, तो ऐसे मैंने डिजाइन किया है। बहुत ज्यादा बुक कभी मैं देख ही नहीं पाया सर, लेकिन वो पूरा मैंने यही करा कि एक एनएबीएच कंसल्टेंट एक थोड़ा सा टच में था, तो उससे थोड़ा थोड़ा पूछते जाते कि एनएबीएच के हिसाब से क्या चाहिए, तो दैट आई इनकॉर्पोरेटेड। So you have utilized the academy resources to the optimum, right? हाँ सर, हाँ मतलब अभी तक तो ऑप्टिमम कर लिया मैंने, मुझे लगता है। Good. We should keep attending जितने भी लाइव होते हैं उनको भी आपको अटेंड हाँ करना सर, है। अब तो करूँगा, बहुत टाइम भी मिलेगा, क्योंकि वो मेन पार्ट मुझे लग रहा है खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे कैसा आता है। जो बिल्डिंग करना, पूरा स्टार्ट करना, दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें ही इतनी हो जाती है ना सर अभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% हो जाए, बस चीज निकलती रहती है। तो वो अभी चल रहा है वो काम अब, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम तो चलता ही रहता है। लेकिन मतलब सब कंप्लीट ऑलमोस्ट 90% करके मैंने कहा अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वरना वो फुल्ली 100% तो सर कभी नहीं होता मेरे हिसाब 100% रेडी आप से। कभी हो नहीं सकते। नहीं, आप सोचेंगे घर से निकलते टाइम की सारी ग्रीन लाइट होगी तब जाऊंगा, तो होता ही नहीं है। होता ही नहीं है सर। कंप्लीट कर आप मतलब कुछ ना कुछ आप सोचा कि बाद में ही देखेंगे, जो होता रहेगा। अभी बन गया है, चालू करो,
उस कारण फिर 4-5 हो भी गए ना केस, नहीं तो फिर वो चलते ही जा रहा था सर प्रोजेक्ट। तो आपका क्या मैसेज है यंग एंटरप्रेन्योर्स है, यंग बडिंग डॉक्टर्स के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि हम अपना शुरू करें, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है? व्हाट इज द मैसेज टू देम? मैसेज टू देम इज कि यू विल गेट अ गुड हेल्प फ्रॉम द एकेडमी एंड बिल्कुल हेजिटेट ना करें। अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप ये करने में ही आपको अच्छा लगेगा। मेरे साथ यही था कि मैं बोर हो गया था, मतलब फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज एंड दैट लाइफ आई वाज बोर्ड की, मतलब मेरा पेशेंट, मुझे लगता था कि मैं बहुत अपने उसमें रहना चाहिए कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं मेरे पेशेंट को टोटली मॉनिटर कर पाऊँ। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। कहीं और भेजने से अच्छा बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती थी, तो दैट वाज अ मोटिवेशन। और फिर विद द एकेडमी एंड हैंड होल्डिंग दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू दैट ओनली, बिकॉज हमेशा एक हर्डल रहेगा कि स्टार्ट कैसे करें, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लाएं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट मिला मुझे एकेडमी से, जो मैंने बताया फर्स्ट स्लाइड जो 30 बेडेड हॉस्पिटल की थी, दैट इज इटसेल्फ वेरी गुड। इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। गुड। तो यंगस्टर्स से यही मेरा मैसेज है कि डोंट वेट, इफ यू रियली वांट टू गो इनटू अ हॉस्पिटल, स्टार्ट नाउ इटसेल्फ, बिकॉज इस एज में आप जो कर पाओगे इनिशियली, जो फर्स्ट 5 years आप जो जैसे मतलब आई एम नाउ अराउंड 36, तो नाउ आई कैन गिव 4-5 years वेरी एंथुसियास्टिकली दैट, तो दिस इज द टाइम। पहले होता था थोड़ा सा अपना धीरे धीरे करो फिर बनाओ फिर हॉस्पिटल, मतलब, बट मेरे हिसाब से दिस इज द एज जब आप करके फिर अपना बाकी की लाइफ आराम से स्पेंड करो, अगर चल जाता है तो अच्छे से। नहीं चलेगा ही, क्यों नहीं चलेगा? इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडस्ट्री में, हर जगह इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, तो अच्छा हॉस्पिटल तो हर जगह ही चलेगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सर, तो यही उम्मीद है, और बाकी कर तो रही हैं अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो जाए। और मेन ये था सर कि मेरा एक ये था कि अंदर कहीं नहीं बनाएंगे, मेन रोड पे ही चाहिए। हाँ, एक्सेसिबिलिटी। हाँ, मेरा क्लिनिक थोड़ा सा अंदर है, तो अच्छा। उससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि मतलब बहुत ज्यादा अंदर जाना नहीं है। अल्टीमेटली वो भी चल जाएगा, बट इट विल टेक अ डबल टाइम देन इफ यू आर ऑन मेन रोड। इसमें लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा, उनको तुरंत दे दिया जाएगा। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैं तो मानता हूँ वो खुद ही सेल्फ मार्केटिंग हो गई। आप मेन रोड पे हो, कोई आते जाते ऐसे देख के जाता है। Right. So great. It is That was fantastic. the main. Very inspirational project and very good execution of it. We hope that you are more and more successful, and best of luck for you and all your organization. थैंक यू सो मच सर, आप लोगों की मेंटरशिप से ही सब पॉसिबल हो पाया। मैं तो पर्सनली आके मिलना चाहता हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाओ। आप थोड़ा लंबा चलाइए, और एक दिन हम भी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाओ। We love to see that. Okay. Thank you so much. Audience who are watching, if you want to understand how Vishal has done it and how he has executed the whole project, we'll put his links and his contacts below this video, so you can contact him and you can take the guidance from him. And we will also tell you that if you want to get the help like Vishal got, how did he get it and what is the way to come inside the academy. So there is a link below the video, and you click the link and join this webinar. You will be explained what is the way, how to get the help from academy. It's great talking to you, Vishal, and it was a pleasure. Thank you so much, sir. Thank you. It was pleasure meeting you. Yeah.